Assalamu alaikum everyone. So I am going to revise some of the portions which I have taught in the last two classes. So we're talking about the geometrical optics. Now in the optics we are essentially dealing with mirrors, lenses. Mirrors, as you know, there are different types of mirrors. Once we talk about plane mirror, once we are talking about the spherical mirrors. In the spherical mirrors we have two types of mirrors. One is the concave and another is a convex mirror. And similarly in the lens also we have two types of lenses. One is the concave lens and another is the convex lens. Now going with the basic laws of reflection, as I have already told you in the last class. So the first law is angle of incidence is equal to angle of reflection. So second is incident ray, reflected ray and the normal, all the three lie in the same plane. So suppose we have plane mirror here. So this is suppose an incident ray here. So this is incident ray and we are drawing a normal here. तो यहाँ हमारे पास एक नॉर्मल है, तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो इस तरफ आएगी. सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज नॉर्मल. So this is angle of incidence I. Angle of incidence is the angle that is made by the incident ray with the normal, and the this is the angle of reflection R. So the angle of reflection is the angle that is made by the reflected ray with the normal. Okay, so angle of incidence is equal to angle of reflection. And second law is about these three, all the three, they lie in the same plane. That means incident ray, normal and the reflected ray. So all the three form they are coplanar. Okay, so this was about the laws of reflection. Now since we were talking about, हमारे पास सपोज एक प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर आपने देखा है, यहां पर हमारा एक प्लेन मिरर है. प्लेन मिरर में एक साइड क्या होगा, दिस विल बी द पॉलिश्ड सरफेस, ओके, एंड दिस विल बी द रिफ्लेक्टेड सरफेस. सो अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, दिस इज ऑब्जेक्ट ओ, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, इसकी इमेज जो है इस साइड बनेगी. सो इमेज विल बी फॉर्मड एग्जैक्टली एट अ डिस्टेंस एट विच इट इज लोकेटेड फ्रॉम द मिरर. तो यहां से जो यहां तक जो डिस्टेंस है, दैट विल बी द सेम डिस्टेंस बिटवीन mirror and this image. So this is image, this will be the object distance. Okay, यहां object distance है, so object distance जो यहां से यहां तक है, तो ये यहां से यहां तक होती है. Okay, so we'll prove it. Okay, so what we will do, अगर इंसिडेंट रे ऐसे पड़ रही है, so this is the incident ray. Okay, so this will get reflected in the, we'll drop this portion. तो ये जो है इंसिडेंट रे, ये इसी तरफ वापस भी आ जाएगी. ओके, बिकॉज हियर इट इज नॉर्मल, इट इज इंसिडेंट रे ऑल्सो, इट इज रिफ्लेक्ट. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हैज टू बी जीरो एंड इट विल पास इन द सेम डायरेक्शन. नाउ दूसरा क्या है कि दूसरा मैं ऐसे डाल रहा हूं इंसिडेंट रे, ऐसे यहां भी डाल सकता हूं, ऐसे ओब्लिक. तो यहां पर क्या होगा, यहां पर मैं एक नॉर्मल डाल रहा हूं, दिस इज नॉर्मल. ओके, तो दिस इज नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे. ओके, तो यहां क्या होगा, दिस विल बी द एंगल ऑफ, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस मेड बाय द इंसिडेंट रे विद दिस नॉर्मल. ओके, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट इस डायरेक्शन में होगा. तो दिस इज R. Okay, this is getting reflected in this direction because I has to be equal to R. Okay, so अगर मैं क्या करूंगा, अगर ये reflected ray है, this is incident ray, this is reflected ray. Okay, this is another incident ray and the reflection takes place in the same direction because it is normal to then this one. Okay, surface पे normal है. तो अगर मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऐसे extend करूंगा, यहां इसको मैं ऐसे एक्सटेंड कर रहा हूं, तो ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड ऐसे है, तो इसको भी मैं ऐसे एक्सटेंड करूंगा. तो यहां पर अगर मैं सपोज P Q R S, तो यहां पर दो ट्रायंगल्स हैं, एक तो P Q R है, दूसरा Q R S है. ये एंगल I है, तो ये भी I होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. दूसरा क्या है कि ये R होगा,
तो ये R होगा, तो दिस विल बी R. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये R होगा तो ये भी R होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल साइड. तो ये R है तो ये भी R हो गया, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. दिस इज पैरेलल टू दिस वन, सो this one these two angles will be equal. Now what we are going to do is simply we use the geometry here. यहां पर tan of I लेंगे हम, tan theta is equal to perpendicular by base, that is QR by PR, and tan R is equal to, similarly tan R is equal to, that is QR divided by RS. Angle of incidence is equal to angle of reflection, so these two are equal. Tan I is equal to tan R, because I is equal to R, that means QR by PR is equal to QR by RS. QR कैंसिल हो गया, तो यहां पर आपका आ गया PR, that is the object distance, okay, the distance from the mirror to the object, okay, that will be equal to RS, that is the image distance, that means the distance between the image and the mirror. So these two will be equal, okay. Suppose मेरे पास यहाँ पर एक मिरर है, तो मिरर है मेरे पास यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ पर एक मार्कर रख रहा हूं, तो आप जरा देखो, मार्कर जितनी दूरी यहां से मार्कर तक है उतनी दूरी पे इमेज भी बनती है, ओके. जो ही मैं इसको क्लोज ले रहा हूं तो इमेज भी क्लोज आता है, ओके. Now दूसरा चीज है साइन कन्वेंशंस, ओके. बिफोर वी आर गोइंग टू we'll move to sign conventions. I am going to tell you something regarding I am going to tell you about spherical mirrors, okay. Spherical mirror क्या है, अभी तो जो ये था this was a plane mirror. दूसरा होता है spherical mirror. Spherical mirror ऐसे होगा, suppose this is a mirror, एक hollow है, okay. This is polished from this side, okay. इसको मैं एक्सटेंड भी कर सकता हूं, ऐसे पूरा एक मिरर बना सकता हूं, तो दिस विल बी अ हॉलो मिरर, ओके, स्फेरिकल इन शेप, ओके. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू कट सम, एक हेमिस्फीयर मैंने सपोज ले लिया, हेमिस्फीयर, तो यहां पर दिस विल बी द, दिस इज द पॉलिश्ड सरफेस, ओके, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो यहां से रिफ्लेक्शन होगा तो ये पॉलिश्ड होगा, तो जो भी लाइट होगी तो वो इस तरफ आएगी, रिफ्लेक्ट भी इसी डायरेक्शन में होगी. सो दिस मिरर इज कॉल्ड एज अ कनकेव मिरर. Concave mirror is a mirror where the convex side of the mirror is polished, while as the concave side is the reflecting surface, okay. तो यहां पर आपका ये reflecting part बनेगा, और ये जो है convex side जो है, convex side आपका polished है, okay. Now suppose convex mirror क्या होगा, convex mirror ऐसे ही होगा, लेकिन उसमें जो होगा this will be so ऐसे होगा ये, लेकिन इसमें क्या होगा कि ये कन्वेक्स मिरर में ये वाला आपका पॉलिश्ड होगा. सो कनकेव साइड इज पॉलिश्ड, ओके, एंड कन्वेक्स जो कन्वेक्स सरफेस है तो उस पे क्या होगा, उस पे रिफ्लेक्शन होगा, ओके. सो दिस इज कन्वेक्स मिरर, ओके. दिस इज कन्वेक्स मिरर, दिस इज कनकेव मिरर. तो कनकेव मिरर जनरली यूज होता है, जनरली आपने देखा होगा सोलर फर्नेसेस में यूज होता है, ओके, कनकेव मिरर. क्योंकि इसमें क्या होगा, जो भी लाइट आएगी, सो सपोज कोई भी लाइट यहां से आएगी, यहां से आएगी, इंफिनिटी से आएगी, सो दिस विल गेट कॉन्सेंट्रेटेड एट ए पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज द फोकल पॉइंट. तो यहां पर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी ये लाइट जो है, दिस विल गेट कॉन्सेंट्रेटेड हियर आफ्टर रिफ्लेक्शन, सो दे विल, दीज रिफ्लेक्टेड रेज विल मीट हियर, ओके. तो यहां पर जब ये मीट करेंगे तो यहां पर ये क्या कर सकते हैं, तो यहां पर ये यूज हो सकता है कहां पर, सोलर फर्नेसेस में. सो कन्वेक्स मिरर आपने देखा होगा जनरली यूज होता है व्हीकल्स में, ओके.
तो हम पढ़ेंगे अब इनके यूजेस क्या है और कहाँ कहाँ यूज मतलब इस्तेमाल होते हैं। सो अगर आपने कनकेव मिरर में कुछ चीजें हैं जो आपको यू हैव टू रिमेंबर। पहला क्या है, दिस इज अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का सबसे जो मिडल पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड एज अ पोल। तो यहां पर आपका पोल बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ पोल ऑफ द मिरर। तो पोल ऑफ द मिरर और इसका कोई सेंटर होगा। अगर मैं इसको क्या करूंगा, इसको एक्सटेंड करूंगा ऐसे, तो मैंने इसको एक्सटेंड किया तो ये स्फीयर बन गया। स्फीयर का सेंटर होगा, सो दैट विल बी हियर, यहां पर सेंटर होगा। तो सेंटर से लेकर जो पोल तक जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड एज द, जो सेंटर से लेकर पोल तक जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड दिस पॉइंट, दिस सेंटर इज कॉल्ड एज ए सेंट्रल पॉइंट, जो यहां पर है, दैट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां तक जो दूरी है, दैट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। और उसी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द प्रिंसिपल, सॉरी दिस इज द पोल ऑफ द मिरर। और ये जो लाइन है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल एक्सिस। इसको मैं एक्सटेंड भी कर सकता हूं यहां, दिस इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस विल बी द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो लाइन है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल एक्सिस। सो प्रिंसिपल एक्सिस वी कैन डिफाइन एज द लाइन दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, ओके। दो पॉइंट्स हैं, मीट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। वो स्ट्रेट लाइन जो है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल एक्सिस। और कोई भी रे जो पैरेलल होगी इसको, ओके, बेसिकली दैट इज कमिंग फ्रॉम सम इंफिनिटी सोर्स, ओके, तो वो क्या होगी, दैट इज कॉल्ड एज द पैराक्सियल रे, ओके। तो यहां पर सपोज एक पैराक्सियल रे है, सो दिस इज पैरेलल टू दिस वन, ओके। These three are mutually parallel, okay. So these all parallel rays, okay, that are these parallel rays basically they are parallel to each other. तो यहाँ इसको parallel भी होंगे, इसको जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो रिफ्लेक्ट करने के बाद कहाँ ये जो मीट करते हैं, they meet at a point that's called as a, इस पॉइंट पे मीट करेंगे, that's called as a फोकस या प्रिंसिपल फोकस उसको बोलते हैं, ओके। प्रिंसिपल फोकस, दिस इज फोकस, and the distance between F and P, that is known as the focal length, okay. इसको बोलते हैं focal point और principal focus. This line is called as the principal axis. और इन जो rays है, they are called as paraxial rays. Now अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, इसको डिस्टेंस पे रखेंगे और हमें देखना है कि इमेज कहां बनेगा। सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं एक ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे रखूंगा। इन्फिनिटी पे जो ही मैं रखूंगा तो जो भी आएंगे रेज, दैट विल बी पैराक्सियल रेज एंड दे विल, सो फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। पहला जो होगा, सो दिस ऑब्जेक्ट विल बी एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट is at infinity। तो इमेज देखना है हमें, इमेज क्या बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, एनलार्ज्ड बनेगी, या इन्वर्टेड बनेगी, या रियल बनेगी, सॉरी इन्वर्टेड या एनलार्ज्ड या जो भी है, नेचर ऑफ इमेज हमें देखना है, ओके। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी, व्हाट विल हैपन, these rays, these are parallel rays, so they will, after reflection, so they will meet at प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस पे हमने ये मीट हो गई, ओके। सो जो इमेज होगा, दैट विल बी डिमिनिश्ड। बट यहां पर एक चीज है, यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि ये रियल है कि इन्वर्टेड है। रियल इमेज किसे कहते हैं और इन्वर्टेड, सॉरी, रियल है कि वर्चुअल है। रियल इमेज किसे कहते हैं और वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं। रियल इमेज वो इमेज होती है जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज जो है एक्चुअली मीट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम रियल इमेज। सो अगर इमेज यहां बन गई, सो दिस इज द रियल इमेज,
ओके, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट एट दिस पॉइंट। वर्चुअल क्या होगी, वर्चुअल क्या होता है कि उसमें जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो एक्चुअली मीट नहीं कर पाते, ओके, दे आर डाइवर्जेंट, तो वो डाइवर्ज हो जाती है। लेकिन अगर हम दे अपीयर टू नाउ मीट, सपोज यहां से अगर एक, सपोज यहां पर अगर हम एक रे डालेंगे यहां पर, सो दिस विल गेट रिफ्लेक्टेड इन दिस डायरेक्शन, ओके। दूसरा अगर मैं सपोज यहां ऐसे डालूंगा तो ऐसे, so this will get reflected suppose in this direction, okay, so these two will never meet, okay, ये रिफ्लेक्टेड रेज जो है कभी मीट नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, ऐसे पीछे एक्सटेंड करूंगा, so there will be an image formed here, okay, reflected rays are actually not meeting but they appear to meet, okay, on the other side of mirror, so this is called as a virtual image। अभी हम पढ़ेंगे वर्चुअल इमेज के बारे में भी। फिलहाल आप पहले ये जो है ऑब्जेक्ट, इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी सो द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। लेकिन रिफ्लेक्टेड रे किस डायरेक्शन में जाएगी तो हमें कैसे पता चलेगा, ओके। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक ये याद रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो दिस होल्ड्स ट्रू इन एनी केस वेदर इट इज अ प्लेन मिरर, वेदर इट्स कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। सो यहां पर ये कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में क्या होगा, कनकेव मिरर में आप यहां पर एक टेंजेंट डालेंगे, ओके, टेंजेंट डालोगे तो इस पे टेंजेंट पे नॉर्मल भी आपको क्या करना है, इस पे आपको नॉर्मल डालना है, ओके। तो नॉर्मल किस डायरेक्शन में आएगा, नॉर्मल ऐसे ऐसे आएगा और दिस विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। तो यहां ऐसे पास हो जाएगा, सो दिस इज पैरेलल, ये सॉरी दिस इज परपेंडिकुलर, ओके। यहां पर ये टेंजेंट है, टेंजेंट को, ये आपका टेंजेंट है, इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट डालना है। टेंजेंट जो ही डालोगे तो उसमें क्या करोगे आप, परपेंडिकुलर एक डालोगे, तो जो परपेंडिकुलर है दैट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो परपेंडिकुलर है तो दिस इज इंसिडेंट रे, तो दिस इज थीटा, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। So after reflection it will pass through the focus, that will be also, this will be also equal to theta। So similarly here, यहां पर भी क्या करोगे आप, ऐसे टेंजेंट डालोगे, टेंजेंट पे क्या करोगे आप, एक नॉर्मल डालोगे, वो नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाएगा। उसके बाद ये जो है ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, दिस इज इक्वल टू थीटा, दिस विल बी आल्सो इक्वल टू थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज थीटा। नाउ दिस विल आल्सो पास थ्रू द फोकस, सो इमेज आपका फोकस पे बनेगा और इमेज आपका दूसरा डिमिनिश्ड भी बनेगा, एंड दिस इज रियल इमेज, ओके। सो यहां पर एक क्वेश्चन है कि ये जो नॉर्मल है, व्हाई डज दिस पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, अगर आप, हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल के किसी भी जो सर्कम फ्रेंड्स पे अगर आप नॉर्मल डालोगे, ऐसे नॉर्मल डालोगे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जो नॉर्मल होगा, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है यहां पर जो नॉर्मल होगा इस पॉइंट पे, ओके। सो अगर आप नॉर्मल डालोगे तो दैट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, हियर आल्सो द सेम थिंग, ओके। कंसीडर दिस एज, यहां पर ये तो स्फीयर है वैसे, लेकिन 2 डायमेंशंस में इसको आप प्रोजेक्ट कर सकते हो एज ए सर्कल, ओके। स्फीयर को प्रोजेक्ट कर सकते हो आप एज ए सर्कल, तो उसमें क्या होगा, इसमें यहां पर एक टेंजेंट है, तो यहां पर जो है दिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस इज द इंसिडेंट रे दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द नॉर्मल, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, so the image will be formed at the focus। Now image is object is kept between infinity, we can say it, image is, object is kept beyond center of curvature, okay, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, COC, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक, दिस इज कनकेव मिरर, ये यहां पर एक कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर में क्या करेंगे आप, यहां से प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहां पर फोकस है और यहां पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है।
तो मैं क्या करूंगा, अभी ऑब्जेक्ट में रखूंगा यहां पर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद मुझे देखना पड़ेगा कि जो इमेज है वो कैसी बनेगी और कहां पर बनेगी। सो आई एम कीपिंग ऑब्जेक्ट हियर, और अगर अब मुझे देखना है कि जो इमेज है कहां बनेगी। ओके, पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं एक रे जो है सो दैट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पर मैं एक रे डाल रहा हूं, तो हियर मैं टेंजेंट यहां पर एक टेंजेंट है, तो उसमें नॉर्मल, वो जो नॉर्मल है सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाएगा। ओके, फिर ये थीटा। ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, क्योंकि ये प्रिंसिपल फोकस है तो इट विल पास थ्रू द फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, तो ये फोकस के थ्रू जाएगा ऐसे। अनदर थिंग व्हाट आई कैन डू, दूसरा मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू में ऐसे एक इंसिडेंट रे डाल रहा हूं। जो ही सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू में डाल रहा हूं एक इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे। तो यहां भी ये इंसिडेंट रे है, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। ओके, एंड हियर अगर मैं नॉर्मल डाल रहा हूं तो ये थीटा हो गया, ये 2 थीटा है, ये जो एंगल है दिस इज 2 थीटा, दैट इज एंगल ऑफ आई प्लस एंगल ऑफ आर। ओके, बिकॉज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू सपोज थीटा, दैट मींस दिस एंगल इज 2 थीटा। ओके, दिस इज सम ऑफ एंगल्स ऑफ इंसिडेंस है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। सो क्या होगा, यहां से एक इंसिडेंट रे आ गई, अगर मैं नॉर्मल यहां पर डालूं, सॉरी पर टेंजेंट डाल रहा हूं, टेंजेंट पर जो नॉर्मल होगा तो वो तो यही होगा ना, ये वाला। ओके, तो इंसिडेंट रे अगर इस डायरेक्शन में आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी डायरेक्शन में वापस जाएगी। ओके, नाउ यू रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग, एनी रे दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, passes back in the same direction after reflection. तो after reflection it will pass in the same direction. तो इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन होगा उसका उसी डायरेक्शन में वापस ये रिफ्लेक्ट होने के बाद जाएगी। ओके, तो यहां पर जब ये आएगी तो वापस इसी डायरेक्शन में, तो क्या होगा, इन दो जो रिफ्लेक्टेड रेज का जो है इंटरसेक्शन यहां पर है, तो इमेज आपका यहां बनेगा। सो दिस इमेज विल बी, पहली reflected rays actually meet at this point. Okay, so that's why this is a real image, this is the real image. So this is the real image here. Okay, and second thing, inverted nature क्या है, एक तो real है, दूसरा inverted, तीसरा क्या है, डिमिनिश्ड है, लेकिन उतना डिमिनिश्ड नहीं है, we cannot say it as highly diminished. Okay, but when the object is kept at infinity, the image is formed at principal focus, that time it is highly diminished. Okay, उस टाइम क्या बनता है, highly diminished. Now तीसरा क्या है इसमें, तो this will be diminished, that means the image जो हाइट है दैट इज स्मॉल इन कंपैरिजन विद द ऑब्जेक्ट हाइट। एंड चौथा क्या है, पहला तो रियल इमेज है, दूसरा इन्वर्टेड है, तीसरा डिमिनिश्ड है, एंड फोर्थ जो इसकी पोजीशन है दैट इज इट इज फॉर्मड बिटवीन, दिस इज प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो इट इज फॉर्मड बिटवीन C and F. Okay, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं जो अब मैं ऑब्जेक्ट को कहां रखूंगा, एग्जैक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, आई विल सी नाउ वेयर द इमेज विल बी फॉर्म्ड। तो यहां पर आपका प्रिंसिपल फोकस F है, तो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब एक ऑब्जेक्ट को मैं रखूंगा एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ आई हैव टू सी वेयर द इमेज विल बी फॉरवर्ड एंड व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज।
तो पहला क्या होगा, पहले में ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। दूसरा मैं क्या करूंगा, दूसरी रे के लिए मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास करना चाहता था, लेकिन क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है तो वी कैन डू अनदर थिंग, वी कैन एक रे में अगर डालूंगा थ्रू प्रिंसिपल फोकस, इफ आई एम पासिंग वन रे, where it will go now? It will now reflect in the direction that will be parallel to principal axis. मैं आपको समझाऊंगा क्यों। ओके, थोड़ा सा यहां पर इसको so this is passing through the principal, यहां पर आपका आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी आफ्टर, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द इंसिडेंट रे। ओके, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। ओके, यहां पर इंसिडेंट रे है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। Now these two rays meet here, so image will be formed exactly at the center of curvature. now यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने एक इंसिडेंट रे डाली कहां से, प्रिंसिपल फोकस से। पहला तो मैंने क्या किया, पहला मैंने पैरेलल डाली प्रिंसिपल एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल डाली, तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। ओके, that's understood. Okay, now second thing is, if I am passing the incident ray through principal focus, now what will happen after reflection, it will be parallel to प्रिंसिपल फोकस। वाई? क्योंकि अगर मैं यहां से इंसिडेंट रे डालता तो रिफ्लेक्ट जो होगा वो यहां से आती, रिफ्लेक्शन जो है, जो रिफ्लेक्टेड रे जो है दैट वुड हैव पास्ड थ्रू दिस प्रिंसिपल फोकस। तो अगर मैं इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस के थ्रू डाल रहा हूं तो रिफ्लेक्टेड रे दैट विल बी नो पैरेलल सिंपली, बिकॉज हियर इफ आई एम यहां पर एक टेंजेंट डालो, टेंजेंट पे एक नॉर्मल डालो, तो नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाएगा, दिस इज आई, दिस इज आर, or this is R, this is I, both angles are equal. So simply, if the incident ray will pass through the principal focus, it will be now after reflection, it will be parallel to the principal axis, and इसका converse भी true. If the incident ray will pass, it will suppose suppose initially parallel to principal axis. After reflection, it will pass through the principal focus. Okay, और यहाँ पर क्या है कि इमेज जो है, ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड, यहां पर बियॉन्ड नहीं है, दिस इज केप्ट एट, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो इमेज जो है, इमेज पहला क्या है, इमेज इज फॉर्मड एट, इट इज एग्जैक्टली फॉर्मड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो इमेज इज फॉर्मड एट सेंटर ऑफ curvature. Okay, second thing, inverted, third thing, inverted है, diminished तो नहीं लग रहा है, okay, enlarged भी नहीं लग रहा है, so it will be the same size. Okay, same size. Okay, magnification that means 1. Okay, you can say there is no magnification at all. Okay, magnification है ही नहीं, जितना ऑब्जेक्ट का हाइट है उतना इमेज का। Okay, and third thing is, it is a real or a virtual? Reflected rays are actually meeting at this point, that means it will be virtual. Sorry, real. This will be real. This is the real image. Okay, real है, same size है, inverted है, and it is formed at the center of curvature. अब मैं क्या करूंगा, नाउ थोड़ा मैं क्लोज ले रहा हूं, यहां पर प्रिंसिपल फोकस है,
यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अभी तक मैंने पहले किया था, पहले ऑब्जेक्ट को रखा था एट इन्फिनिटी, उसके बाद दूसरा मैंने रखा था बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को मैंने इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज बन गया हमारा प्रिंसिपल फोकस पे। ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हमारा जो इमेज है दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। थर्ड थिंग, मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो इमेज हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ऑब्जेक्ट को यहां रखूंगा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। सो ऑब्जेक्ट इज हियर। ओके, तो अब मुझे देखना है कि इमेज कैसे कहां बनेगी। सो इन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट, नाउ वी कैन सी इट बिटवीन, object is kept between C and F, center of curvature and principal focus. PF means principal focus. So we are keeping an object between center of curvature and principal focus. Now we want to see where the image will be formed. तो पहले मैं क्या करूंगा, बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास। तो पहला जो है, I can, एक में ऐसे डालूंगा, this is the incident ray. Incident ray is passing through the center of curvature. That means it is getting reflected in the same direction. So it will be reflected in the same direction. ओके, तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे बनाने की दूसरी जरूरत नहीं, क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। सो इंसिडेंट रे ऐसे, तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगा। दूसरा मैं क्या करूंगा, प्रिंसिपल फोकस के थ्रू, प्रिंसिपल फोकस के थ्रू जब मैं इंसिडेंट रे डाल रहा हूं, दिस इज द इंसिडेंट रे। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से आएगी, सो आफ्टर व्हेनेवर एनी लाइट इंसिडेंट रे दैट it passes through the principal focus, after reflection it will be now parallel to the principal axis. तो यहां पर पैरेलल आ जाएगी, तो ये पैरेलल आपका आ जाएगा ऐसे। ओके, so this image is formed beyond center of curvature. Okay, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, इमेज, नेचर ऑफ इमेज। ओके, पहला बनेगा कहां पर, सो इमेज विल बी फॉर्मड, इमेज इज फॉर्मड बियॉन्ड सी। दूसरा नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या है, पहले क्या है, रियल, रियल है, एक्चुअली मीट कर रहे हैं यहां पर रिफ्लेक्टेड रेज, एक्चुअली मीट हियर, एंड इन्वर्टेड है ना, इन्वर्टेड। तीसरा क्या है, इन्वर्टेड भी है, रियल भी है, एंड दिस इज यू कैन से इट स्लाइटली एनलार्जड, क्योंकि यहां जो है दिस जो इसका हाइट है दैट इज मोर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, इमेज हाइट जो है, सो इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट, ये आपका बन रहा है मैग्निफिकेशन है। तो यहां आपका मैग्निफिकेशन ज्यादा है, क्योंकि इमेज की जो हाइट है दैट इज मोर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट, सो दिस इज मैग्निफाइड। ओके, और वी कैन से इट एनलार्ज्ड। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ऐसे ही कनकेव मिरर में यहां पर दिस इज पोल, ओके, दिस इज प्रिंसिपल फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो देखा इमेज वहीं बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा तो इमेज यहां बन गया था। अब हम एग्जैक्टली फोकल पॉइंट पे रखेंगे, और हमें देखना है फोकल पॉइंट पे रखेंगे तो इमेज कैसे बनेगी। ओके, सो एक लाइन डाल दो ऐसे, प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू। ओके, ऐसे जाएगी। ओके, दूसरे के लिए मैं क्या करूंगा, ऐसे
आई विल नॉट नाउ इन दिस केस दूसरी रे में पैरेलल नहीं डाल सकता बिकॉज दैट हैज टू नाउ देन पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, लेकिन यहाँ जो ऑब्जेक्ट है इट इज एट द प्रिंसिपल फोकस। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक डाल रहा हूँ, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज आल्सो द रिफ्लेक्टेड रे बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। हियर इंसिडेंट रे ये है, दिस इज इंसिडेंट रे। सो एनी लाइन दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज नॉर्मल, तो यहाँ पर ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, दिस इज थीटा। आफ्टर रिफ्लेक्शन सो दिस हैज टू बी थीटा, दिस हैज टू बी थीटा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज द नॉर्मल, ये नॉर्मल है क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास हो रहा है। जरूरी नहीं कि ये डायरेक्शन में हो, या ऐसे भी आ सकता है, ओके, बट दैट लाइन हैज टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास हो रहा है, तो दैट मींस इट इज नॉर्मल। तो यहाँ पर ये ऐसे पास हो जाएगा, सो दिस इज लाइक दिस। अगर आप देखोगे ये कभी मीट नहीं करेंगे, नाइदर इन दिस डायरेक्शन नॉर इन दिस, इवन इफ यू विल एक्सटेंड हियर, तो दोस लाइंस व्हिच आर पैरेलल ऑब्वियसली दे विल नेवर मीट, ओके। डाइवर्जेंट अगर होते इस डायरेक्शन में तो यहां से कन्वर्जिंग होता, या यहां से डाइवर्जिंग, कुछ भी, यहां से डाइवर्जिंग, यहां से कन्वर्जिंग, लेकिन ये क्या है, दीज आर पैरेलल, म्यूचुअली पैरेलल, सो दे विल नेवर मीट, ओके, दे विल मीट एट इंफिनिटी। दैट मींस इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इमेज will be formed at infinity. And nature of image क्या होगा, real, can see अगर इस डायरेक्शन में, and ये highly enlarged भी होगा, and apart from that highly enlarged means magnified, okay. नाउ अब हम क्या करेंगे, सीधा दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहां तक तो आया था हमारा, दिस इज प्रिंसिपल फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहला हमने क्या किया, इन्फिनिटी पे रखा, उसके बाद बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बाद एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बाद बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, उसके बाद एट फोकस, ओके। फोकस पे देखा तो ऑब्वियसली इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। नाउ वी विल कीप ऑब्जेक्ट हियर, ऐसे रखेंगे हम, ओके। और हमें देखना है कि इमेज कहां बनेगी। इसके लिए हमें क्या करना है, पहला एक रे में सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू यहां पर डाल रहा हूं, तो दिस विल गेट रिफ्लेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन, ओके। सेकंड, दूसरी के लिए मैं क्या करूंगा, उसके बाद ऐसे एक इंसिडेंट रे, ओके, सो दिस विल गेट रिफ्लेक्टेड इन दिस डायरेक्शन, this is incident ray, this is theta, this will be also theta, okay। तो यहाँ पर क्या होगा, since this is the incident ray, this is also the reflected ray, after it will यहाँ पर मिरर को रिफ्लेक्शन के बाद इसी डायरेक्शन में पास भी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है, दिस इज इंसिडेंट रे, तो दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ओके। तो ये थीटा है, ये भी थीटा है, ओके। नाउ इस डायरेक्शन में तो कभी मीट नहीं करेंगे, दैट मीन्स दिस इज डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट इन दिस डायरेक्शन, इस साइड में मिरर की इस तरफ कभी मीट नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पीछे देखेंगे तो दिस विल मीट। तो यहां पर आपका सो इमेज विल बी फॉरवर्ड बियॉन्ड द मिरर, ओके। कण के मिरर की इस तरफ जाएगा, एंड दिस विल बी नेचर। जरा देखो, रियल है कि वर्चुअल है, रियल तो है ही नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग हियर, सो इट अपीयर्स दैट this is actually the reflected, this is incident ray, this is the reflected ray also, okay, in the same direction. So they actually, it appears to meet in this direction, that means
दिस इज वर्चुअल, ओके। और दूसरा क्या है, एक तो वर्चुअल है क्योंकि यहां पर रिफ्लेक्टेड रेज जो है दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, ओके, इट अपीयर्स दैट दे आर मीटिंग हियर। दूसरा क्या है, दूसरा है मैग्निफाइड, ओके, और यू कैन से और एनलार्ज्ड, ओके। तो ये एनलार्ज्ड है, मैग्निफाइड, और यू कैन से मैग्निफाइड, एंड दिस इज अ वर्चुअल इमेज। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट द साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस के बारे में आपको ध्यान देना है, ओके। साइन कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशंस में आपको सिंपली याद रखना है। सपोज ये मिरर है, मिरर की इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे जो कोई भी आप ले रहे हो, चाहे आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, वट एवर यू आर टेकिंग, सो दैट इज फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज ऑल नेगेटिव मिरर की इस तरफ, ओके। और मिरर के राइट हैंड साइड पे जो भी आप लोगे, चाहे आप इमेज डिस्टेंस लोगे, यहाँ पर तो फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है दैट इज यू हैव टू टेक इन दिस डायरेक्शन, ओके, बिकॉज फोकल लेंथ इज इन दिस डायरेक्शन, ओके। फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इस डायरेक्शन में है, दैट इज नेगेटिव, ओके। इस डायरेक्शन में हमेशा नेगेटिव लेना है और इस डायरेक्शन में हमेशा पॉजिटिव, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू टेक सम एग्जांपल्स। मैं सपोज ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, ओके। दिस इज रियल इमेज दैट इज फॉर्मेड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द इमेज डिस्टेंस एंड द ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस and the object distance obviously they will be the same, and furthermore the image height and the object height they are same. Now we are going to say about we are going to see the conventions here, okay. यहां पर पहले क्या है, पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, दिस इज प्रिंसिपल फोकस, दिस इज रेडियस ऑफ, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से यहां तक डिस्टेंस है, तो इस साइड है, दैट इज नेगेटिव। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर जब नेगेटिव होगा तो फोकल लेंथ भी ऑटोमेटिकली दैट विल बी आल्सो नेगेटिव, okay. This is in turn dependent on this one, or you can see they are interdependent. Now image object distance यहां से यहां तक, तो इस डायरेक्शन में दैट इज नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस यहां इमेज बन गया था, दैट मींस दिस इज नेगेटिव, ओके। नाउ अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सपोज यहां पर ले रहा हूं ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट, तो आपका जो इमेज बनेगा वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, ओके। दिस विल बी स्लाइटली कैन से इट विल बी एनलार्जर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका नेगेटिव इस डायरेक्शन में, फोकल लेंथ नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से यहां तक इस डायरेक्शन में है, तो दैट मींस इट इज नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस, इमेज तो यहां इस डायरेक्शन में, दैट मींस इट इज नेगेटिव। सो ऑल द फोर विल बी नेगेटिव। Now here one important thing, in case of concave mirror there is only, you can say it, image distance is positive only in one case, remember it is very important। image distance जो है उसको हम पॉजिटिव लेंगे खाली एक केस में, जब आपने रखा है यहाँ पर फोकल लेंथ और पोल जो है, पोल ऑफ द मिरर यहाँ पर आपने रखा है क्या, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ रखा, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज आपका यहाँ बनेगा वर्चुअल मिरर की इस तरफ, तो यहां आपका बनेगा, ओके। तो दैट टाइम रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इस तरफ ऑब्वियसली, तो दैट इज नेगेटिव। फोकल लेंथ ऑब्वियसली दैट इज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो फिर भी पोल ऑफ द मिरर एंड बिटवीन प्रिंसिपल फोकस, लेकिन इसी डायरेक्शन में है ना, तो यू कैन टेक इट एज नेगेटिव। लेकिन आपका जो इमेज है दिस विल बी फॉरवर्ड इस डायरेक्शन में, तो इमेज आपको पॉजिटिव लेना है, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर ऐसे है, ओके। दिस इज पॉलिश्ड, दिस इज
pole of the mirror, this is the principal axis. ओके, प्रिंसिपल एक्सिस ये है. लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जो फोकल लेंथ और सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट यू कैन नॉट डिफाइन इन दिस डायरेक्शन. ओके, इस डायरेक्शन में तो डिफाइन नहीं कर सकते ना, ये ऐसे है, तो कर्वेचर ऐसे है. ओके, सो दैट मींस प्रिंसिपल फोकस ऐसे होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका ऐसे होगा. So the distance between center of curvature and the pole, that is called the radius of curvature. Because if you extend it ऐसे सर्कल बनेगा ऐसे, तो यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा. दिस इज प्रिंसिपल फोकस. यहाँ पर आपको सपोज ऑब्जेक्ट रखोगे यहाँ पर इन्फिनिटी में, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी. इन्फिनिटी पे रखोगे तो इमेज आपका कहाँ बनेगा वो आपको देखना पड़ेगा. जब मैं ऐसे इन्फिनिटी पे, दिस इज पैरेलल, this is parallel. Okay, this is also parallel. Now यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि रिफ्लेक्शन कैसे होगा. ये साइड पॉलिश्ड है तो रिफ्लेक्शन तो इसी डायरेक्शन में होगा. ओके, तो रिफ्लेक्शन आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक टेंजेंट डालना है. ओके, दिस इज द इंसिडेंट टेंजेंट पे आपको एक नॉर्मल भी डालना है. ओके, दिस नॉर्मल विल बी इन दिस डायरेक्शन. ओके, डालेंगे इसमें थोड़ा सा. आपका जो नॉर्मल है दिस इज इन दिस डायरेक्शन. सो नॉर्मल जो है दैट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ. ओके, सो दिस इज थीटा. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू दिस वन, सो दिस विल बी आल्सो थीटा. ओके, सिमिलरली हियर. ओके, यहां पर आपने टेंजेंट डाला नॉर्मल, दिस इज थीटा. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू दिस वन, सो दिस यू कैन पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. जो रिफ्लेक्टेड रेज है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है. सो इफ यू अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे ऐसे, सो इफ यू आर एक्सटेंडिंग इट, so it will pass through the principal focus. So यहाँ पर आप इसको extend करोगे तो this will pass through the principal focus. So that means these reflected rays are actually now passing through the principal focus. अगर principal focus पे यहाँ पास करेंगे, but basically they are divergent in this direction. आपका जो image है, image will be forward at principal focus. लेकिन important चीज है, object distance यहाँ पर है, principal focus सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस डायरेक्शन में, जो आपका फोकल लेंथ इसी डायरेक्शन में. तो आपका जो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिस इज इन्फिनिटी. ओके, बट दिस विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव. दिस विल बी नेगेटिव बिकॉज इट इज इन दिस डायरेक्शन, सो दिस विल बी नेगेटिव. अब आपका क्या है, फोकल लेंथ. फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव बिकॉज इट इज इन दिस डायरेक्शन, सो दिस विल बी पॉजिटिव. Radius of curvature will be positive. Focal length positive है तो radius of curvature भी positive होगा because it is in this direction. Okay, so image distance positive or negative, that's formed by the principal focus. So it is in this direction, that means it is positive. So यहाँ पर आपका खाली एक चीज negative है, that is the object distance. Rest everything is positive. So this is a simple sign convention. Okay, you have to simply see if it is in this direction, left hand side में अगर आपको यहाँ से मेजर करना पड़ेगा लेंथ, तो that means it is, you have to take it as negative. यहाँ से तो आपको पॉजिटिव लेना. कन्वेक्स मिरर में एक और चीज है, अगर आप सपोज इफ यू आर कीपिंग एन ऑब्जेक्ट, okay, between pole of the mirror and suppose infinity. Okay, pole of the mirror और infinity के बीच में रखोगे तो आपका जो image है that will be formed, that will be the virtual image. Okay, that will be formed on this side of the mirror. Okay, that will be a virtual image. So we are going to continue with this. Okay, in the next class.